Good evening everyone, welcome to my channel. Dear viewers, today we'll discuss about ASEAN from the chapter Contemporary Centers of Power, and the book is Contemporary World Politics. Okay, in my previous video I have covered European Union, but I'm sure here this European Union is very clear to you right here. If not, you're always welcome to submit your comments in your comment box here. You can ask your queries. You can ask like this part, ma'am, if could be solved this way, if we could have it this way here, or something, any kind of suggestions. Suggestions are always welcome here. Anyway, there is always a scope for the improvements here. Let's begin from this for the today a new topic, that is ASEAN, from the same chapter, that is Contemporary World Contemporary Centers of Power, the book Contemporary World Politics. Okay, so my dear viewers, what I have to tell you about ASEAN. Everybody knows about ASEAN, and first thing you need to know the full form of ASEAN. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Southeast Asian Nation. I'm talking about Southeast Asian nation. When I pressurize, when I emphasize on this Southeast Asia, so obviously, I'm asking you to have the locations clear. Okay, so it's my request to you, please kindly do have a look on the map of Asia. Okay, Southeast Asian map you need to know here. Okay, now if you look at this map here, what you'll find here, there are all the Southeast Asian nations are given here, but you need to know the founder countries. First of all, we'll see which were the founder countries and when was this Southeast Asian nation, this organization was formed here. Okay, so I must tell you in the very simple words here. Initially, when this ASEAN was founded, it was founded in 1967, but we had only the 5 founder countries here. And if you will look at this, all the five founder countries, which were these 5 founder countries? So in sequence, like you can say Indonesia is there, Malaysia is there, Philippines is there, Singapore is there, and Thailand here. My dear viewers, I always tell my students, whenever you have these kinds of, like a sequence, the series of, like you can say something you need to remember and you're not able to remember here, how to recall, how to, like, we have our own methods of recalling certain things here. The same manner here, if you have to remember these 5 founder countries, and later on I'll be telling you 5 more countries which were added in this ASEAN here. Okay, now you simple go for abbreviations here. अगर suppose जैसे मैंने जिस sequence में अभी बोला, Indonesia, Malaysia, the Philippines, the Singapore and the Thailand here. So you can say IMPST. Okay, right. So ASEAN was founded by Bangkok Declaration here. तो हम बात करते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन की. बैंकॉक डिक्लेरेशन में जो है ASEAN को फॉर्म किया गया था. अब एक चीज़ और आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर हम जो है इन कंट्रीज़ की जो है हिस्ट्री पर जाएं, तो अगर हम थोड़ा सा पीछे बैकफ्लैश में जाने की कोशिश करें, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो रीजन है इसने काफ़ी कुछ जो है फेस किया है. ओके, इकोनॉमिकली अगर हम देखें, पॉलिटिकली देखें, सो जो है, एंड देयर वाज colonialism, like the colonial powers, they had their influence, they had their hold in this entire region here. Okay, so wherever these colonial powers were there, they have done what here, exploitation to the extent what they could do here. Fine. Now I said like ASEAN was founded by Bangkok Declaration. My dear viewers, Bangkok Declaration पे you can like put your initials, जो भी आप अपना जो है साइन बनाना चाहते हैं, कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, बिकॉज हमारे पास फाउंडर कंट्रीज भी पूछे जाते हैं, मैप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. फिर आपके पास जैसे आपसे ये बैंकॉक डिक्लेरेशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि बैंकॉक डिक्लेरेशन क्या था. ओके, नाउ आफ्टर दिस मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है जब ये इन 5 फाउंडर कंट्रीज़ को देखें, तो थोड़ा इनकी जो है बैकग्राउंड में जाने की कोशिश भी करिएगा कि इनकी जो है हिस्ट्री क्या है. ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट कंट्री लेके चलती हूँ, दैट इज़ इंडोनेशिया.
राइट। बैंकॉक डिक्लेरेशन मैंने पहले ही बोल दिया कि बैंकॉक डिक्लेरेशन से जो है इसको हमने फॉर्म किया है। इंडोनेशिया जो है उसकी जो ऑफिशियली जो रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया is a country of Southeast Asia and Oceania between Indian and the Pacific Oceans here। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा जो है मैप को जब देखें तो उसकी जो है लोकेशन और थोड़ी सी जो है उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर जान पाए तो इट विल बी गुड फॉर यू। ओके, देन द सेकेंड कंट्री इज देयर, दैट इज मलेशिया। मलेशिया अगेन इज अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, okay, and it is occupying parts of Malay Peninsula, island of Borneo, fine। and अगर हम इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो कुआलालंपुर इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया हियर। Then we come to Philippines, and Philippines again, you know, a very well-known country here. The Manila is the capital of Philippines here. Singapore, you know, like a very attractive destination for, you know, many of, you know, Indians who are there and who keep visiting in all these Southeast Asian region. But we do have like a lot to hear about Singapore here. So capital also is Singapore itself is the capital of Singapore here. Then I come to Thailand. Thailand again is a Southeast Asian nation right here, and it's there in Bangkok. That is the capital here. Fine here. So this is all about all these 5 founder countries here. अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट पर लेके चलते हैं, जिसमें कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो रीजन है हमारा अपने आप में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है, और हम जो है इसको लुक ईस्ट पॉलिसी की उसमें एक अलग से हमारा टॉपिक होता है जिसमें हम लुक ईस्ट पॉलिसी को लेके चलते हैं, उसमें भी हम इसको कवर करेंगे जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है। लाइक इट्स अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव जोन फॉर ऑल दीज कंट्रीज, लाइक एवरीबडी, in fact every country is very attractive zone for everyone, but why only specially we are talking about Southeast Asian nation, because all these countries like China की नज़र, हिंदुस्तान की, म्यांमार की, ये सारे कंट्रीज जो हैं, लाइक उधर से हमारा यूएस भी जो है इस रीजन को जो है निगलेक्टेड नहीं छोड़ना चाहता, अनटच नहीं छोड़ना चाहता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियान हियर। ओके, सो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियान को जब आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशन को भी जो है अच्छे से जो है एक सेपरेट एक क्वेश्चन की नज़र से इसको आप तैयार करें जो है। फाइन। सो दिस एशियान की जो, अगर हम एशियान के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखिए, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव लेके चले, किसी देश के ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट हमारे मन में सब पे आता है दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। या इकोनॉमिकली साउंड होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, पॉलिटिकली हम स्टेबल होने चाहिए, हमारी जो है अपने कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में, सबके साथ में जो है अच्छे रिलेशंस होने चाहिए है। तो ये हमारा सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्रू द सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। या सो कल्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या है, लाइक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम डू टेक प्लेस अमंग्स ऑल दीज कंट्रीज। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। पीस किसको नहीं चाहिए, पीस कौन नहीं चाहता, एवरीबडी, एवरी नेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हम सब ह्यूमन बीइंग जो है किसकी बात करते हैं, वी ऑल टॉक अबाउट पीस एंड हार्मनी। ओके, अब आते हैं हम जो है दूसरे कुछ और 5 कंट्रीज़ के ऊपर जो है, जैसे मैंने आपको बताया था इनिशियली 5 कंट्रीज थे, बट बाद में जो है 5 और कंट्रीज इसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। तो वो कौन से कंट्रीज हैं, ब्रूनी दारुसलम है, वियतनाम है, लाओस पीडीआर है, म्यांमार है, कंबोडिया है। तो ये सारे जब कंट्रीज जो है इसमें ज्वाइन करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी बन जाती है, इट्स बिकम्स 10 हियर। ओके, इसके बाद जो है आपके पास में एक एशियन फ्लैग है। हर कंट्री का फ्लैग होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्लैग होता है, उसका एक लोगो होता है, उसकी कुछ जो है उसका नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है उसका, लाइक एक अपने आप को जो है दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो कुछ ना कुछ अपने जो है सिम्बल्स रखता है। तो अगर हम एशियन फ्लैग पे देखते हैं तो आपको इसमें 10 स्टॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। तो 10 स्टॉक्स का मीनिंग क्या है, ये 10 स्टॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 10 स्टॉक 10 कंट्रीज, 5 इनिशियल, 5 फाउंडर एंड 5 लेटर। सो 10 स्टॉक 10 कंट्रीज, राइट है। तो ये सिंपल आपका एक क्वेश्चन, जैसे अगर सपोज लोगो बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि 10 स्टॉक्स का क्या मतलब है।
और इसके साथ साथ वो ये सर्कल में दिखाई दे रहे हैं, तो ये सर्कल का क्या मतलब है? सो ऑल दीज एशियन कंट्री दे बाउंड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी, एंड जो सर्कल है वो किस चीज़ को हमें दिखाता है? इट शोज दैट इज द यूनिटी ऑफ एशियन. हाउ यूनाइटेड आर दीज ऑल द countries and how united they are for this organization. Unitedly they will effort to have progress in this region, in this area, right here. तो हम social progress, cultural progress, political stability, economic progress, इन सब के बारे में जो अगर हम बात करेंगे तो हम ये कहते हैं कि हम सब एक साथ मिलकर जो है हम आगे बढ़ने की जो है एक शपथ लेते हैं, एंड वी आर कमिटेड फॉर दैट. अब इसको जो है हम किस तरीके से, किस नज़र से देखते हैं? हम इसको जो है एशियन वे, ये हम कहते हैं कि इट्स एन एशियन वे, ये हमारा स्टाइल है. और एशियन वे क्या? एशियन वे भी अलग से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि एशियन वे है क्या. बट अगर हम एशियन वे को समझने की बात करें तो ये क्या है? नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट. ओके, राइट हियर इट मीन्स देर इज गोइंग टू बी, जो हमारा इंटरेक्शन होगा, जो हम बातचीत करेंगे, हम किसी भी तरह के कोई भी एफर्ट्स को लेके चलेंगे तो उसमें हमारा कैसा होना चाहिए मेथड? इट शुड बी इनफॉर्मल, it should be non-confrontationist and cooperative. It should be cooperative here. So the respect for national sovereignty is critical to the functioning of ASEAN. Consensus-based non-interference, that is informal diplomacy. Informal diplomacy. Okay. अब उसके बाद में जो है माय डियर व्यूअर्स एक टॉपिक और है जो कि अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है. इट्स अ 6 मार्क क्वेश्चन, 3 पिलर्स, बट आई एम टेलिंग यू हियर ओनली इस थ्री पिलर्स को मैं जो हूँ अलग से एक वीडियो बनाऊंगी और उसमें जो है आप मुझे फॉलो करिएगा. सो टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ एशियन हियर. ओके, सो माय डियर व्यूअर्स, नाउ आई कैन से हियर लाइक अगर हम जो है एशियन को लेके चलते हैं, एशियन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन है एशियन. जैसे मैंने आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में बताया, एशियन भी उसी लेवल पर जो है एक अपने आप में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड वी ऑल आर कमिटेड फॉर दिस रीजन सो दैट द रीजन progress, and there is lot of cooperation amongst all these Southeast Asian nations here. Okay, right here. But one request I have here, I'll be giving you some notes, but these notes I'll be sending you through a link. Okay, and link I'll be submitting, I'll be giving in my description box. You can check the description box, you can click on this link here, and the moment you press check this link, you will get the notes also here, right here. So for further details also you can continue and you can follow my channels, right? You keep following, and I take time, but whenever I come, I try my best so that the best in a very easy language I am able to reach out to you here. Okay, correct here. So but don't forget to like, share and subscribe so that time to time whenever I am here for your services, you are able to follow me, you are able to get the informations here. Okay, right? So wait for my next video. Till then, goodbye, see you, bye bye, bye, see you.